Hello students, welcome to another session, and today in this session we are going to learn another concept in matrix and determinant, that is how to find or to solve the linear equation developed by matrix, okay, or to solve the linear equation using the concept of matrix. Clear? So as you remember, in the last class we do one method, okay, as I've already told you that there are two methods to solve the linear equation, okay, that is from business problem to linear equation to develop the matrix, okay, and that matrix is calculated, or the unknown variable, okay, it's calculated using two methods basically. One is matrix or inverse method that we did in our last class. Today we are going to discuss the another most famous method, okay, that is the most famous method because almost all, in all cases, whether students and in practical case also, that method is most popularly used. That method is known as the Cramer's rule, okay. Gabriel Cramer developed that Cramer's rule in 1709, okay. So that, as we know, the Cramer's rule, clear, that is the most popular, most Cramer's rule, most popular and used concept or method, okay. Anybody want to find or to solve the linear equation, to find the unknown variable, that is x, y, clear, the Cramer's rule is most popularly used, clear. So today we are going to discuss the Cramer's rule, how to find the unknown variable using Cramer's rule, clear. See students, as we know, in a equation, clear, in a equation, what happen, there are two sides, that is left hand side and right hand side, clear. Let us take an example, that is, let I say ax plus by plus cz, clear, is equals to 1, clear, that is equation 1, first equation, clear. Then minus by, or take it minus dy plus ez is equals to 2, that is second equation. As we know, the matrix are of 2 into 2, yes or no, second order matrix, clear, or third order 3 into 3, yes or no. As we know, only square matrix can be, a determinant can be find of square matrix. So these two are two type of equation or linear equation that are given, clear. It may be either two equation, clear, with three value. See here we have 3, if we find the matrix we have 3 column, 1 2 3 and 2 row, clear, okay. Now next I can say fx minus gy minus
hz is equals to 3. That is third equation. Okay, so please have a look in this three equation. Okay, see what happened here. We have three equation. ठीक है, चलो क्या है हमारे पास इधर थ्री इक्वेशंस हैं. ओके, 1 2 3. अभी इसको क्या करना है हमें, क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं कि ऐसा इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन किसी भी टाइप का हो सकता है. जैसे कि इधर हमने लिया थ्री अननोन वेरिएबल x y z, ठीक है, फिर इधर भी here x place is nothing means x is 0, y z, x y z, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर. देन it may also given only x y, that is 2 column. Yes or no? 2 column. So if we solve this three equation, clear, we can construct what kind of matrix, clear, what kind of matrix we can construct. Definitely because of this three equation, clear, have definitely 1 2 3 column, and 3 equation means number of equation is equal to number of row. इक्वेशन हमारे पास जितने हैं उतने रो हैं डेफिनेटली, बिकॉज वन इक्वेशन इज वन रो, क्लियर. एंड हाउ मेनी अननोन वेरिएबल इन दैट इक्वेशन, दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम, क्लियर. ओके, हियर वी आर नॉट फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, क्लियर. सो अगर डिटर्मिनेंट निकालना होता तो हम क्या करते, हम देखते कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है. बट इधर हमें क्या बोला है कि अननोन वेरिएबल को निकालना है, जैसे कि इधर x y z का निकालना है, ठीक है. अभी आप बोलोगे कि सर x y z का वैल्यू तो निकालना है, दैट इज अननोन वेरिएबल, बट a b c d इसका वैल्यू भी तो हमें नहीं पता है. सी स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू हमें पता है, जो कि है क्या है, जो कि है कोएफिशिएंट्स, जैसे कि हमने देखा. ओके, कोएफिशिएंट, क्लियर, आ रहा है, याद आ रहा है कुछ. जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा जो इक्वेशन होता है, ठीक है, मैट्रिक्स कैसे होता है, द पोजीशन इज कॉल्ड A11, क्लियर, दैट इज नेक्स्ट A12. 11 मींस रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, देन रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, देन रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, ठीक है, ये है. तो अभी क्या होता था, ये जो जगह पे, क्लियर, जो कोएफिशिएंट, हर एक वैल्यू का एक एक कोएफिशिएंट रहता था, दैट इज द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. यस और नो, दैट इज द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड एज ए आई जे. एज आई से, एलिमेंट्स डिनोटेड एज ए आई जे. यस और नो, elements are denoted as a I j. A मतलब the coefficient of that particular place and I j the position of that place. Clear? आ रहा है समझ में. तो ये जगह पे हम क्या लिखते थे, जैसे कि सोचो कि A11 का कोएफिशिएंट क्या है, उसका कोएफिशिएंट है लेट 2, फिर A12 का है 3, A13 का है 4, ये 5 6 7 8 9 0. आ रहा कि नहीं समझ में. तो ये रहता था वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट ये रहते थे. आ रहा है समझ में. वैसे ही लाइक दैट, ये देखिए, ये जो है, ये जो हमने लिखा ए बी सी, मतलब वैल्यू के एलिमेंट में जो एक प्रीवियसली जो रहता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. ये जो देखो, ये जो एक्स है, x that is the unknown variable, y is the unknown variable, z is the unknown variable, but उसके आगे जो है that is the coefficient. clear? उसी तरह से इधर भी जो है अपना, ये सब है definitely they are the coefficient, जो कि है a b c. in the first equation we have coefficient that is a b c. if we develop a matrix that is like a b c, clear,
सब प्लस है, देन इधर क्या है, कुछ भी नहीं है x का वैल्यू, दैट मीन्स इट इज 0। इधर क्या है, माइनस डी, ये हो गया e, हियर f, ये माइनस डी, ये माइनस h। ठीक है, आ रहा है समझ में? दैट इज द एलिमेंट्स। एंड ये जैसे हमने बोला था कि नंबर में अगर दिया रहेगा ये है कोफिशिएंट, इधर नंबर नहीं है, नंबर रहेगा। ठीक है, हम जो क्वेश्चंस करेंगे, आपको जो क्वेश्चन दिया रहा होगा उसमें नंबर्स होंगे। इधर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसने कि डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं, तो वो हिसाब से मैंने क्या डेवलप किया कि दे आर द कोफिशिएंट। इसको लेके हम ऐसे एक मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। क्लियर, आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर। नाउ अभी क्या करना है, देखो, दो द मैट्रिक द इक्वेशन दैट वी हैव गिवन, ठीक है, हमको जो इक्वेशन दिया रहा होगा उसमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स डेफिनेटली डेवलप करना है। जैसे कि हमने स्टूडेंट्स इन द मैट्रिक्स मेथड में किया था, एक इक्वेशन दिया होता है, ठीक है, उसमें से हम क्या निकालते हैं, वी यूज द फॉर्मूला दैट इज ax इक्वल्स टू b और x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, ये करते थे, है कि नहीं? दैट इज इन द मैट्रिक्स मेथड और इनवर्स मेथड, है कि नहीं? कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन में हम क्या करते थे, जो वैल्यूज होते थे, है कि नहीं, द कोफिशिएंट, द मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज a, उसको a लेते थे, फिर इक्वल टू के इधर ये जो है 1 2 3, ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे, b। आ रहा है ना समझ में? ये जो मतलब इक्वेशन के ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यूज है उसको लेके हम बनाते थे a, और राइट हैंड साइड के वैल्यूज को लेके हम बनाते थे b। ठीक है, और बाकी x मतलब द अननोन वेरिएबल्स, जैसे कि इधर है x y z, तो x y z वो होता था अपना क्या, अननोन वेरिएबल का इक्वेशन। वो तीनों को हम सॉल्व करते थे तो आ जाता था अपना x एंड y एंड z का वैल्यू। ठीक है कि नहीं? तो ये भी उसी तरह का है। क्या करेंगे हम, देखो ये जो इक्वेशन है इसमें भी हम ऐसे ही मतलब मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। इधर हमने 3 मैट्रिक्स डेवलप किया था, एक था a, एक था b, एक था x। a मतलब द नोन कोफिशिएंट्स, ठीक है, जो नोन द वैल्यूज और कोफिशिएंट ऑफ द एलिमेंट्स, उसको लेके हम बनाते थे a। b मतलब कौन सा था, b मतलब द वैल्यूज द कोफिशिएंट एट द राइट हैंड साइड, इक्वल के बाद जो है राइट हैंड साइड, क्लियर, इक्वेशन का राइट हैंड साइड का वैल्यूज वो था b, और x मतलब द अननोन वेरिएबल्स दैट इज x y z, और x y अगर दो रो वाला होगा सेकंड ऑर्डर का तो x y, थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो x y z। ठीक है, क्लियर। सो इधर भी हमें वैसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें भी हमें मैट्रिक्स डेवलप करना है। ठीक है, देखो नाउ कितने मैट्रिक्स डेवलप करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितने मैट्रिक्स डेवलप करना है, जैसे कि हमने देखा था अगर इधर हम ये लेंगे तो x मतलब इधर कितने अननोन वेरिएबल हो गए, हाउ मेनी अननोन वेरिएबल वी हैव x y एंड z। ठीक है, 3 थे, आगे समझ में, x y z। इधर अगर सोचो कि ओनली ये होता ax प्लस by इक्वल्स टू 1, क्लियर, ax प्लस by इक्वल्स टू 1, मतलब सुनो सोचो ये तो z अगर नहीं होता तो x में अननोन वेरिएबल कितने होते, x एंड y, 2 अननोन वेरिएबल होते। क्लियर, ओके, आ गया समझ में? कंफ्यूज मत होइए, मैं इधर वो जो दूसरा मेथड को लेके आया हूं, आप लोगों को फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए। ठीक है, आई वांट योर कंफ्यूजन एलिमिनेटेड, नो कंफ्यूजन। If you have confusion in this starting position, then you may not able to solve the equation. So that's why please watch it very carefully. Clear? What is the rule? ये अगर रहता x मतलब हमारे 2 हो गया सेकेंड ऑर्डर x एंड y, बट इधर क्या है 3 है x y z। क्लियर? तो वो देखना है
व्हाई आई एम सेइंग दैट कि देखो ये जो मैट्रिक्स मेथड में कितना इक्वेशन है वो मैटर नहीं था, है कि नहीं, क्योंकि हमें बस ए को डेवलप करना है, बी अपने पास है, ए इनवर्स निकालना है, फिर बी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। बट इसमें क्या करना है हमें कि कितना मैट्रिक्स डेवलप करना है, ठीक है, कितने मैट्रिक्स डेवलप करना है वो डिपेंड करता है हमारे पास कितने अननोन वेरिएबल हैं, ठीक है, ओके क्लियर। तो सोचो कि अगर ये तो ओके चलो हम करके बता देते हैं, ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूं। ये आ गया इतना समझ में कि कैसा है, जो वैल्यूज है उसके आगे जो दिया रहेगा वो है कोएफिशिएंट, उसको लेके एक मैट्रिक्स डेवलप करना है, फिर बाकी के मैट्रिक्स कैसे डेवलप करना है वो बताता हूं, ठीक है, एज लाइक द प्रीवियस। तो अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो भी कंपैरिजन करना था वो मैंने कर दिया कंपैरिजन, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये चीजों को कैसे हम डेवलप पहले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ टू डेवलप द मैट्रिक्स, क्लियर, ओके। तो चलो अभी सोचो कि ये इक्वेशन में आपको मे बी मुश्किल थोड़ी हो रही है, ठीक है, कि ए बी सी है एक्स वाई। आई होप जो मैंने समझाया कि इधर जो ए बी सी डी ई एफ जी एच इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सिंपल कोफिशिएंट है और बाकी के जो वैल्यूज है वो है अननोन वेरिएबल जिसको हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया, बट अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं एक वैल्यूज वाला, ठीक है, इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। चलो क्या लेंगे, लेट अस टेक x plus 2y minus 3z is equals to 4, okay, then minus 2x minus 2x, okay, that is 3 इक्वेशन वाला है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, x हाँ ठीक है, minus 2x plus 3y is equals to 2, okay. Now 4x minus y minus z is equals to 5, ओके क्लियर। सोचो कि ये दिया है अपना मेथड, ठीक है, सॉरी द इक्वेशन, ये है अपना लीनियर इक्वेशन गिवन। इसमें से हमें पहले क्या करना है, क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, क्रैमर्स रूल में क्या करना है कि पहले हाउ मेनी अननोन वेरिएबल वी हैव इन दिस, सो वी हैव अननोन वेरिएबल। पहले तो सोचो कि अननोन वेरिएबल क्या है, अननोन वेरिएबल क्या क्या है, वी हैव एक्स वाई एंड जेड, क्लियर। अननोन वेरिएबल है अपने पास, क्या क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो इट मींस जितने अननोन वेरिएबल हैं, ठीक है, देखो ये मैं चलो ये मैं लास्ट में बताता हूं, ठीक है। वी हैव 3 अननोन वेरिएबल, क्लियर। नाउ हमको क्या करना है, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, क्लियर। सो हाउ टू फाइंड दैट वैल्यूज, सी एक्स का वैल्यू पहले निकालना है, एक्स का वैल्यू, एक्स फॉर्मूला याद करो, याद करने का कुछ नहीं, सिंपल है, x इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें x का वैल्यू मिलेगा, दैट इज dx बाई डी, dx बाई डी, आ रहा है समझ में, dx बाई डी, dx बाई डी, d मतलब द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मेन मैट्रिक्स। ये जो सोचो, ये जो है ना, ये जो इक्वेशन दिया है, इसमें हमें क्या करना है, पहले तो एक अपना जो मेन मैट्रिक्स डेवलप होगा कि नहीं, जैसे कि मेन मैट्रिक्स मतलब क्या है, मेन मैट्रिक्स, मेन, और वी कैन से द मास्टर मैट्रिक्स, मास्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो कौन सा है कि प्रीवियस मेथड में हम जो ए निकालते थे ना, ए जैसे निकालते थे, क्या करते थे, ये इक्वेशन
सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेते थे, कंसीडर करते थे, उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उसको डेवलप करने से जो मिलता था दैट इज ए इधर मेन एलिमेंट मास्टर मैट्रिक्स वही है, उसी को हम इधर क्या बोलते हैं, डी। आ रहा है समझ में? ठीक है। प्रीवियस मेथड में हम जो ए जैसे निकालते थे, मतलब जो कि ये जो है वैल्यूज, ये सबके क्या कोफिशिएंट्स को लेके हमें बनाते थे। जैसे कि हम देखेंगे कि इधर क्या होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। सोचो कि ए कैसे निकालते थे वैसे ही डी निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, तो पहले तो ये हो गया, पहले फर्स्ट इक्वेशन को, ये हो गया एक्स बिगिनिंग में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दैट इज 1। ये हो गया 2, देन ये हो गया -3 दैट इज फर्स्ट रो कंप्लीट। देन चलो सेकंड रो को, ये हो गया x के आगे क्या है -2 दैट इज द कोफिशिएंट इज -2। हियर y 3 और z कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 है, 0। क्लियर? देन ये है x के पहले क्या है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4, इधर y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो ये -1, ये हो गया -1। हियर z के आगे भी कुछ नहीं तो 1, तो -1। तो ये हो गया अपना, हम बोल सकते हैं, सोचो कि यही इक्वेशन मेथड है, इक्वेशन सेम रहेगा, मेथड क्या अप्लाई करना है। अगर इनवर्स में बोला है तो उसको a निकालना है पहले, अगर क्रेमर्स रूल में बोला है तो d निकालना है। ठीक है, कौन सा है, दोनों का प्रोसीजर सेम ही है, वही बस यही कोफिशिएंट्स को लेके, लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को लेके एक बनाओ, डेवलप करो, ये हो गया अपना d। हो गया क्लियर? यस और नो? यस। चलो तो x को कैसे निकालना है, कि चलो x को निकालने के हमें चाहिए dx by d। d क्या हो गया मालूम? अभी dx क्या है, dx क्या है, dx कैसे निकालना है, चलो ये बता देते हैं। dx मतलब क्या है, ये हो गया d। चलो अभी देखते हैं dx क्या है, चलो देखते हैं dx लेट। ठीक है, एक एक मैं बता रहा हूं आपको, एक एक मैं जो भी कर रहा हूं इधर आपको इमीडिएटली नोट डाउन करना है। ठीक है, ऑर्डर में करना है, क्योंकि मैं इधर ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। ऑर्डर मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे, मैं ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। मुझे जिधर भी जगह मिलेगा मैं वो उधर कर दूंगा, आपको वो फॉलो नहीं करना है, आपको ऑर्डरली एक के बाद एक करना है। ठीक है, तो मैं कभी भी कोई भी इरेज कर सकता हूं, सो आप वो तक वेट मत कीजिए, आप इमीडिएटली उसको, ठीक है, राइट, यू मस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, आप वो लिख दीजिए, फिर मैं जैसे जो जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद वो नेक्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? सो मैंने डी कैसे निकालना है वो हमको बता दिया, हाउ टू फाइंड डी। क्लियर? डी मींस द डिटरमिनेंट ऑफ द मास्टर मैट्रिक्स। क्लियर? आ गया? नाउ अभी क्या करना है हमें, x चाहिए तो dx निकालना है। dx कैसे निकालना है, देखो वेरी सिंपल। अभी हमको एक चीज को कंसीडर करना है, क्या, कि जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं। वी हैव 4 इन फर्स्ट रो, 4 इन फर्स्ट रो, 2 इन सेकेंड रो, 5 इन थर्ड रो। ठीक है, 4 इन फर्स्ट रो, 2 इन सेकेंड रो, 5 इन थर्ड रो। ठीक है, इतना तो अभी आपको समझ में आ गया कि डेफिनेटली दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ थर्ड 3 रो एंड 3 कॉलम, तो ये भी डेफिनेटली वैसा ही आएगा, है कि नहीं? क्लियर? तो चलो अभी हमको क्या करना है कि देखो कि राइट हैंड साइड में क्या क्या वैल्यूज है। 4 इन रो 1, 2 रो 2, 5 इन रो 3। बस सिंपल क्या करना है, देखो dx कैसे निकालना है। x का पोजीशन क्या है, x कौन से कॉलम में है, देखो ये हो गया रो ना, ये हो गया रो 1, ये रो 2, ये हो गया रो 3। क्लियर? क्लियर? 4 इन रो 1, 2 इन रो 2, 5 इन रो 3। अभी देखो ये जो इक्वेशन में हम कॉलम बोलेंगे, ये जो देखे ये जो है x ये है फर्स्ट कॉलम, तो x मींस कॉलम 1। x किधर है, कॉलम 1 में है।
x अननोन वेरिएबल कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है। y अननोन वेरिएबल कौन से कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में है, कॉलम 2। एंड z अननोन वेरिएबल इज एट थर्ड कॉलम। आ गया समझ में? x है अपना, x कौन सा है? x इन कॉलम 1, y इन कॉलम 2 एंड z इन कॉलम 3। क्लियर हो गया? अभी क्या करना है? देखो सिंपल करना है, वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है कि हमें अगर x निकालना है, dx मतलब जो यही इसी से हम निकालेंगे, x निकालना है, ठीक है? देखो वेरी इजी है, x निकालना है। क्लियर? ये इसको याद हो गया? x मतलब कॉलम 1, y मतलब कॉलम 2 और z मतलब कॉलम 3 हो गया। ठीक है? अभी हमें निकालना है क्या? x निकालना है। x मतलब dx, वी हैव टू डेवलप ए मैट्रिक्स। तो dx, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या है, कॉलम 1 में है x किधर है? कॉलम 1 में। तो सिंपल क्या करना है, जो वैल्यू लाइक dx, x जो कॉलम है उसको निकाल दो, एलिमिनेट दैट। x में जो भी है, जो भी कोफिशिएंट्स है, x मतलब कॉलम 1, क्लियर? कॉलम 1, दिस इज कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। तो हमें क्या निकालना है? x निकालना है। x किधर है? कॉलम 1 में है। तो कॉलम 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उसको निकाल दो। भूल जाओ, नहीं है तो नहीं है, तो मतलब जो था उसको हमने निकाल दिया। अभी नया वैल्यू किधर से आएगा? नया वैल्यू किधर से आएगा? ये है वो नया वैल्यू, है कि नहीं? तो क्या करना है कि कॉलम 1 का हमने निकाल दिया, मतलब कॉलम 1 में जो था ये है रो 1 का वैल्यू, ये रो 2 का, ये रो 3 का, निकाल दिया। उसके जगह पे क्या लिखना है? देखो 1 था रो 1 में, है कि नहीं? ये पूरा कॉलम को हमने हटा दिया। अच्छे से देखो, सुनो अच्छे से। क्या करना है? dx निकालना है, मतलब x का कौन सा कॉलम है? कॉलम 1। कॉलम 1 को हटा दो, ठीक है? वो जो कोफिशिएंट उसको हटा दो। उसके जगह पे क्या लिखना है? उसके जगह पे क्या लिखना है कि द वैल्यूज इन द राइट हैंड साइड। क्या क्या है? 4 2 5। जस्ट सिंपली राइट 4 2 5 मतलब 4 इन द रो 1। तो इधर रो 1 में क्या था? 1 था, 1 के जगह पे लिख दियो 4, हो गया। अभी रो 2 में क्या था? -2। अब ने रो 2 में क्या है? 2। इधर रो 3 में क्या था? 4। इधर क्या है? 5। हो गया ना? आ गया समझ में? तो हमने कॉलम 1 को डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जो वैल्यू थे उसके जगह पे हमने जो नया वाला वैल्यू उसको रिप्लेस कर दिया। बाकी अभी क्या करना है? x का वैल्यू निकालना था, तो हो गया रिप्लेस। बाकी yz को जैसे तैसे लिख दो, जैसा है एज इट इज। क्या था? 2 3 -1 -3 0 एंड -1। हो गया? ये हो गया अपना dx। क्लियर? आया समझ में? ठीक है कि नहीं? क्लियर? अच्छे से देखो, अच्छे से। क्या किया हमने कि d तो हमने ऑब्वियसली निकाल दिया। dx कैसे निकालेंगे कि x का वैल्यू देखो क्या है, x का पोजीशन क्या है, x कौन से पोजीशन में? कि x इन द कॉलम 1, y इन कॉलम 2, z इन कॉलम 3। तो x को निकालना है, तो कॉलम 1 के जो भी हैं कोफिशिएंट उसको निकाल दो। वो जगह पे जो राइट हैंड साइड में जो है इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, उधर वो वाला के पुट कर दो। 1 2 4 की जगह पे आ गया 4 2 5। बस 1 2 4 की जगह पे आ गया 4 2 5। बाकी एज यूजुअल। क्लियर हो गया? ये हो गया अपना dx। आ रहा है कि नहीं समझ में? हो गया dx। तो x हमें मिल जाएगा अभी। dx मतलब ये जो हो गया ना अपना मैट्रिक्स, ये जो हो गया अपना मैट्रिक्स। क्लियर? इसमें क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। d मतलब टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ x। ये जो x मैट्रिक्स हमने डेवलप किया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सिंपल, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट दैट इज dx, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स d। तो डिटर्मिनेंट dx का डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d, हो गया अपना x मिल गया हमें।
ठीक है, क्लियर क्लियर। देन हमें क्या निकालना है, अभी हमें क्या निकालना है, dy। चलो dy निकालना है, सिंपल। dy भी वैसा ही है कि देखो y का पोजीशन क्या है, y है कॉलम 2 में। y किधर है, कॉलम 2 में, इधर में हम लिखा। ठीक है, पहले समझ जाओ, फिर ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप समझ जाओ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखना है कैसे करना है वो मैं बोलूंगा। ठीक है ना, ये सब एनालिसिस करने के लिए हम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग। उसके बाद आपको ये पूरा इतना लंबा नहीं है प्रोसेस, वेरी सिंपल। एक लंबा सा प्रॉब्लम आपको करने में बस 5 से 10 मिनट लगेगा इजीली, बट अभी हम समझ रहे हैं इसलिए टाइम ले रहा हूं मैं। ठीक है, आप भी अच्छे से सोचिए कि हो गया ना, dx आ गया। अभी dy निकालना है। dy कैसे निकालना है, चलो देखो कि y कौन से कॉलम में है, y है इन कॉलम 2, y इन कॉलम 2। तो अभी हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो कॉलम 2 को एलिमिनेट कर दो, वो जगह पे ये जो है नया वैल्यू 425 लिख दो, बाकी सब एज यूजुअल, x एज यूजुअल, z एज यूजुअल, y के जगह पे नया वाला वैल्यू आ जाए, है कि नहीं। तो x में क्या था, देखो मतलब जो ऑर्डिनरी में क्या था, 1 - 2 4, 1 - 2 4। बाकी हमें क्या करना है, कॉलम 2 को रिप्लेस करना है, कॉलम 2 को, बिकॉज वी आर फाइंडिंग dy। सो क्या था, 4 2 5, 4 2 5 हो गया ना। रो 1 में क्या था 2, रो 2 में 3, रो 3 में -1, तो वो जगह पे लिख दिया। रो 1 में 4, 2 इन रो 2, 5 इन रो 3। क्लियर हुआ, आ गया। बाकी जो कॉलम 3 कोई भी चेंज नहीं है, बिकॉज हियर वी आर ओनली चेंज द कॉलम 2, कॉलम 2 को ही चेंज किया। बाकी कॉलम 1 कॉलम 3 एज यूजुअल। क्या गया, -3 0 -1, -3 0 -1। ये हो गया अपना नया एक और मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है अपना y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ द मास्टर मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट ऑफ द dy बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मास्टर मैट्रिक्स d। क्लियर हो गया। अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है dz, dx dy हो गया। अभी dz, क्लियर, dz कैसे होगा, वेरी सिंपल। z कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम। पहले हमने रो कॉलम 1 को रिप्लेस करके dx निकाला, कॉलम 2 को रिप्लेस करके dy निकाला। अभी कॉलम 3 को रिप्लेस कर दो, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 एज यूजुअल रहेगा, कॉलम 3 रिप्लेस करके ये जो नया वैल्यू उसमें पुट अप कर दो। तो क्या हो गया, 1 - 2 4 2 3 -1, ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2 एज यूजुअल। कॉलम 3 में क्या लिखेंगे, कॉलम 3 में क्या आएगा, कॉलम 3 में आएगा क्या कि उसको निकाल दो, क्या आएगा 4 2 5, 4 2 5 हो गया। ये हो गया dz, दैट मींस z इज इक्वल्स टू dz बाई d। ठीक है, ये कर दो अपना x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, तीनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ये जो मैट्रिक्स हमने डेवलप किया, तो अननोन वेरिएबल, इफ यू हैव 3 अननोन वेरिएबल, देन कितने मैट्रिक्स निकालना है, वी हैव टू डेवलप 4 मैट्रिक्स, दैट इज द वन मास्टर मैट्रिक्स, देन dx dy dz, x के लिए एक, y के लिए एक, z के लिए एक। और ये जो x y z निकाला किससे, मास्टर से, तो मास्टर के लिए एक। टोटल हो गया 4 मैट्रिक्स हमें डेवलप करना है। ठीक है, एक पहला तो मास्टर मैट्रिक्स एज यूजुअल जो है, फिर उसमें क्या हो गया, फिर बस हमने रिप्लेस किया dx मतलब x इन द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया। देखो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू जो 4 2 5 बाकी एज यूजुअल। dy में सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया 4 2 5 में, बाकी सब एज यूजुअल। dz थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया 4 2 5 में, बाकी एज यूजुअल। ठीक है, हो गया। बस ये करने के बाद ये हो गया अपना इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। इक्वेशन है, इक्वेशन में से पहले आपको क्या निकालना है, d निकालना है, एक मास्टर मैट्रिक्स डेवलप करना है। हो गया, मास्टर मैट्रिक्स डेवलप करने के बाद आपको क्या करना है, dx निकालना है, फिर dy निकालना है, फिर dz निकालना है। होने के बाद क्या करना है, dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर, ये तीनों इक्वेशन डेवलप हो गया, तीनों मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स।
डेवलप होने के बाद क्या करना है, ये चारों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है. यू नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दोज 4 मैट्रिक्स इन एनी मेथड. जो भी मेथड आप यूज करो, ठीक है. सारस डायग्राम मेथड यूज करो, क्लियर, सारस डायग्राम, और नहीं तो हम एज यूजुअल एक्सपांडिंग मेथड में भी कर सकते हैं. कोई भी आपको जो भी इजी लगे. आपको सारस डायग्राम इजी लग रहा है, आप वो उससे फॉलो कीजिए टू फाइंड द डिटरमिनेंट. अगर आपको वो एक्सपांडिंग, क्लियर, वो इजी लग रहा है तो आप उसे कीजिए, ठीक है. कोई भी आप कर सकते हैं, क्लियर. वो करने के बाद अपना आ गया चारों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट. फिर क्या करना है, x इक्वल टू डी एक्स, जो वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट, बाई डी, डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी, जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी. बस सिंपल हो गया. अपने को x y z के वैल्यू मिल गए. क्लियर, ओके. आ गया समझ में. देखो स्टूडेंट्स, मैं यही जो इक्वेशन है ना, यही जो एग्जांपल है, इसी को मैं आपके लिए फर्दर देखो. अभी एक चीज अच्छे से समझो. आपको समझ में आया कि नहीं, क्या करना है, कैसे करना है? आ गया समझ में? आया अच्छे से समझ में है कि नहीं? हाँ कि ना, अपने आप से पूछो हाँ कि ना. अगर इफ द आंसर इज यस, देन आपको फर्दर वीडियो आगे देखना है, ठीक है. अगर आपका आंसर है नहीं और कुछ डाउट है तो उधर पॉज करो, फिर चले जाओ पूरे बिगिनिंग में, फिर से वो साइड देखो इतने तक, ठीक है. नहीं, जितना तक, क्योंकि इसमें समझने वाले कोई चीज नहीं है. मैंने अच्छे से समझाया. आप कोई स्टेप मिस किए होगे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है. आप उधर ही पॉज करो, फिर बिगिनिंग जाओ, बिगिनिंग जाके इधर तक आओ, ठीक है. जितने तक, मतलब जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखो. फिर आ गया समझ में, फिर उधर से प्ले करके फर्दर देखना है. क्योंकि अभी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन एक सॉल्व करेंगे, ठीक है. सोचो कि ये मैंने बता दिया आपको पहले, कौन सा, थर्ड ऑर्डर वाला. अगर सेकेंड ऑर्डर वाला होता तो क्या रहता अपने पास, ओनली एक्स एंड वाई रहता. क्लियर, एक्स एंड वाई रहता, और मे बी 3 इक्वेशन के जगह पे 2 इक्वेशन होते, तो हो गया 2 इंटू 2. ये हो गया 2, ये हो गया 2. अगर ये सब होता है एक्स वाई जेड, इधर सोचो कि थर्ड इक्वेशन नहीं होता तो भी चलता है. क्लियर हो गया कि नहीं? बट सी स्टूडेंट्स, इधर और एक जो है अपना रूल उधर आ गया. आप देखोगे कि ये डेफिनेटली ये जो इक्वेशन दिया रहेगा ना, स्क्वायर में ही दिया रहेगा. क्यों? क्योंकि हम जो मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें. डिटरमिनेंट निकालना है, वो डिटरमिनेंट को इंटरप्रेट करना है कि नहीं? तो डिटरमिनेंट निकालना है मतलब इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो डेफिनेटली उस स्क्वायर में ही आएगा. सोचो कि ये हो गया क्या, 1 2 3, 3 कॉलम, 1 2 3, 3 रो. नहीं तो आपको क्या देगा, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम. ये हो गया 3 3. अभी एक दे सकता है 2 2. 2 2 मतलब क्या रहेगा 2 2 में? 2 2 में चलो मैं बोलता हूं कि ये नहीं रहेगा, क्लियर, और ये नहीं रहेगा. ये हो गया 2 2, है कि नहीं? 1 2, 2 कॉलम, 1 2, 2 रो. आगे समझ में? बस वैसे ही अगर 2 रो 2 कॉलम है तो उसमें हमारे कितने अननोन वैल्यू हो गए? 2 ओनली xy. तो xy मतलब वी हैव टू डेवलप 3 मैट्रिक्स, दैट इज d dx dy. सो dx इक्वल टू x dx by d, y इक्वल टू dy by d. बस 2 वैल्यू फाइंड हो गए. क्लियर, आ गया समझ में? तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो मैंने जो इक्वेशन लिया है एग्जांपल आपको समझाने के लिए इतना सारा, टू फाइंड हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स आ गया. अब ये मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपको डिटरमिनेंट निकालना है. डिटरमिनेंट निकालने के बाद इधर डिवाइड करना है, अपना वैल्यू आ जाएगा. बट आप सोचोगे कि चलो सर यही एग्जांपल को हम फर्दर करते हैं. नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? कि सोचो ये जो मैंने इक्वेशन लिया है ये वेल सेट इक्वेशन नहीं है. जो इक्वेशन रहते हैं वेल सेट होता है. जैसे कि मैंने इधर जो भी लिया था इक्वल टू 4 2 5, ये अगर x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू उधर उतना पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये मैंने अपने मन से लिया है. ये कि वेल सेट नहीं है. जो इक्वेशन रहता है वो वेल सेट रहता है. मतलब आप अगर उसको सॉल्व करोगे डेफिनेटली x एंड y z का वैल्यू एक प्रॉपर वैल्यू आएगा. आप अगर इसको कोई भी इक्वेशन में डालोगे तो आपका वैल्यू आएगा. बट इधर मैंने जो ये इक्वेशन डेवलप किया था वो अपने मन से किया था, ठीक है, विथ इमेजिनरी फिगर्स. दैट्स व्हाई अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो मे बी इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा. आप सोचोगे कि चलो सब गलत हो गया, ठीक है. इसलिए ये इक्वेशन को, ये एग्जांपल को हम सॉल्व नहीं करेंगे. मैं एक वेल सेट एग्जांपल लूंगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने से आपका हो जाएगा, ठीक है. तो चलो, आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया. अगर नहीं आया तो इधर ही पॉज करो, फिर जाओ पूरा बिगिनिंग में जाके इधर तक
देख के आ जाओ, फिर इधर से प्ले करके देखना, ठीक है। अभी हमें क्या करेंगे, हम एक सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का दो एग्जांपल लेंगे, वो दो एग्जांपल्स को हम क्रैमर्स रूल फॉलो करके उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो ओके, लेट्स टेक 1 2 × 2 एग्जांपल, ठीक है। क्या है देखो कि क्वेश्चन दिया है, क्या है, 2x + 3y = 13। ठीक है, 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बाकी दूसरा क्या है, 6y - 9x = 0, 6y - 9x = 0, ये है अपना सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज इधर मार्क करो आप लोग, ठीक है। क्या है कि ये जो साइड में अपना पोजीशन क्या है, x आ गया इधर, फिर y इधर, फिर y इधर, x इधर, ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ऑल x मस्ट बी इन वन कॉलम, ऑल y इन वन कॉलम, ऑल z इन वन कॉलम, तभी हम जो रिप्लेस करेंगे तो इक्वल वैल्यू आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। x मतलब रो 1 का x, रो 2 का x, रो 3 का x सेम कॉलम है। इधर देखो, ये जो रो 1 है, रो 1 का x है कॉलम 1 में, बाकी जो रो 2 का x आ गया कॉलम 2 में, तो ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए कि इधर भी एक देखने के लिए है चीज कि ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये नहीं होगा, बिकॉज जो x का वैल्यू है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में आ गया, पहला तो हो गया कॉलम 1 में, फिर कॉलम 2 में, वो y भी फिर पहला गया कॉलम 2 में, फिर कॉलम 1 में, तो एक ही ऑर्डर में लिखना है। तो हमको सिंपल क्या करना है, बस पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन जस्ट चेंज कर दो। अगर पोजीशन इक्वल के बीच में, जैसे कि इधर है, सोचो कि 4x = लेट 4x + 3y = 1z, है कि नहीं, ऐसा है, तो इक्वल है इधर, तो इक्वल अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो साइन चेंज हो गया। जैसे कि सोचो कि मुझे 4x को उधर लेना है, y z के साइड पे लेना है, तो हम क्या करेंगे, 3y एज यूजुअल रहेगा, ये हो गया 1z, ये है +4x, वो साइड जाता तो वो क्या हो जाता है 4x -4x हो जाता, +4x उधर जाता तो -4x हो गया, ठीक है कि नहीं। बट अभी सोचो कि मैं क्या करूंगा, अभी इक्वल कोई क्रॉस नहीं करना है, सोचो कि ये लिखा है मैंने, चलो ये हो, सोचो कि y -4x है, -4x + 3y = -1z। अगर मुझे 4x को वो साइड पे लेना है, वो साइड मतलब इक्वल क्रॉस किया मैंने, इक्वल क्रॉस किया तो करने से क्या होगा, साइन चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया 3y, वो चेंज नहीं हुआ, एज यूजुअल है, प्लस = 1z, ये था -4x, वो साइड जाता तो क्या हो जाता +4x हो गया। आगे समझ में। अभी मुझे क्या करना है, ये आ रहा है समझ में। और एक देखो, ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा है कि सोचो ये ऐसा दिया है, y -4x = 1z, ठीक है। अभी ये ऐसा है, मुझे क्या करना है, एज वी नो x मस्ट बी इन कॉलम 1, y मस्ट बी इन कॉलम 2, z मस्ट बी इन कॉलम 3। इधर क्या है, ये y आ गया कॉलम 1 में, x आ गया कॉलम 2 में, तो मुझे जो बेसिक लॉजिक रूल क्या कहता है, x इन कॉलम 1, y इन कॉलम 2, z इन कॉलम 3, ये बेसिक रूल हम किसी को भी कोई जगह पे लेते हैं। हम ऐसे बोले कि सर आपने बोला कि x y z ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, ये नहीं हो सकता क्या, z y x ये नहीं हो सकता क्या स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है, बट क्या है, ऑल मस्ट बी इन वन कॉलम। ऑल मतलब ये जो z है ना, जितने भी रो रहेंगे इसके सारे के सारे रो के z वैल्यू एक ही कॉलम में रहना चाहिए, मिक्सअप नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में, मिक्सअप नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर ऑर्डर कुछ इधर उधर है तो हमें उसको सेट करना है। जैसे कि मैं इधर सेट करना है, ठीक है, x को कॉलम 1 में लाना है, y को कॉलम 2 में लेना है, ठीक है। तो इधर मुझे इक्वल तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है क्या, इक्वल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही कर सकता हूं। तो मैं इधर क्या करूंगा,
सिंपल, x को पहले y को कॉलम 1 में। तो क्या करना है, देखो सिंपल, जो साइन, जिसका जो साइन है उसका वही साइन रहेगा, है कि नहीं? जिसका जो साइन है उसका वही साइन रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ओनली इफ वी क्रॉस द इक्वल क्लियर साइड, अगर वन साइड से दूसरे साइड पे गए तभी आपको साइन चेंज होगा, बट वही साइड में अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो नथिंग विल बी चेंज्ड। क्लियर? तो इधर क्या हो गया, बस 4x को पहले लाना है फिर y को लेना है। तो क्या करेंगे हम, तो 4x का साइन क्या था, माइनस, तो ये हो गया माइनस 4x, y का प्लस, प्लस 3y इज इक्वल टू 1z। हो गया ना, देखो डेवलप, ये था ऐसा, मेन ऐसा था, माइनस 4x प्लस 3y इक्वल z, बस वही हो गया। आ गया समझ में? बस अभी उसी तरह से हमें इधर भी क्या करना है, ये 6y माइनस 9x इक्वल टू 0 है, तो ऑर्डर क्या कहता है कि x को पहले लाओ पहले जगह पे, तो क्या करेंगे, x का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 9x, ये हो गया प्लस, प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में? क्लियर? तो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, माइनस 9x प्लस 6y, माइनस 9x प्लस 6y इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या करना है, उसको जैसा ऑर्डर है वो ऑर्डर के हिसाब से आपको लिख देना है। ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लियर हो गया? चलो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, बिकॉज वी हैव 1 2 2 कॉलम, वी हैव 1 2 2 रो 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट निकालना है, दैट मींस वी नीड टू फाइंड डी, डी मतलब डिटरमिनेंट है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 माइनस 9 6। ठीक है, तो इसको क्या करना है, वेरी सिंपल, दैट इज क्या है, 2 इंटू 6 माइनस माइनस 9 इंटू 3। ओके, तो क्या हो गया, 6 2 12 माइनस 9 3 27, ये हो गया ना माइनस, ये हो गया माइनस 27। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, सो 12 प्लस 27। ओके, क्या हो गया 39। क्लियर? ओके, क्या हो गया 39 हो गया अपना वैल्यू, डी हो गया वैल्यू 39। अभी क्या करना है, dx निकालो, dx क्या करना है, कैसे करना है dx, बस x का वैल्यू क्या है, मतलब इक्वल वो साइड कि 13 एंड 0, 13 एंड 0 को x के जगह पे रिप्लेस कर दो। x का जगह क्या है, कॉलम 1, ऑब्वियसली x इन कॉलम 1, बस कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो नए वैल्यू से। नया वैल्यू क्या है, 13 एंड 0, 13 0, 13 इन रो 1, 0 इन रो 2, एंड वो दोनों आगे कॉलम 1 में, बिकॉज हमें x को रिप्लेस करना है। ठीक है, बाकी y का एज यूजुअल रहेगा 3 एंड 6। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करो, dx निकालो, डिटरमिनेंट क्या हो गया, 13 3 0 6। ओके, दैट इज 13 इंटू 6 माइनस 0 इंटू 3, सो 13 6 कितना हो गया, 60 78। ओके, वी हैव 78। क्लियर? आ रहा है समझ में? हो गया। नाउ dy, लास्ट dy निकालना है। कैसे हो गया dy, बस सिंपल, y का जगह क्या है, कॉलम 2, तो कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो नए वैल्यू से, बाकी कॉलम 1 एज यूजुअल रहेगा। तो कॉलम 1 में क्या था, 2 माइनस 9, कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो नए वैल्यू से, दैट मींस 13 एंड 0। ओके, नाउ फाइंड dy, डिटरमिनेंट ऑफ y, that is 2 minus 9 13 and 0। ये डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट देना है, डिटरमिनेंट मतलब ओनली बार्स। ठीक है, अब क्या हो गया, अभी इसको निकाल दो, क्या हो गया, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, माइनस माइनस ये कितना हो गया, माइनस 9 इंटू 13। क्लियर? ये हो गया 117। ठीक है, ये तो हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 117 इक्वल टू 117। क्लियर? 117 हो गया। क्लियर? सो वी हैव d इज 39, dx इज 78, dy इज 117। क्लियर हो गया ना? अभी क्या करना है, वेरी सिंपल, अभी x निकालो y निकालो।
इज इक्वल्स टू dx बाई dy इज इक्वल्स टू dy बाई d. ओके, तो x इक्वल्स टू dy बाई d, x इक्वल्स टू x इक्वल टू dx बाई d. dx कितना है स्टूडेंट्स? dx है अपने पास 78 बाई d कितना है? dx 78, d कितना है? 39. वैसे dy कितना है? 117 बाई d कितना है? 39. सो ये हो गया 39 2 जा 78, 39 3 जा 117. So the value of x and y is 2 and 3. Clear? The value of x is equals to 2, y is equals to 3. बस x equals to 2, y equals to 3. ये हो गया सॉल्यूशन. ठीक है, पहले हमने डेवलप किया, उसका मैट्रिक्स निकाला, मैट्रिक्स डेवलप किया, डिटरमिनेंट निकाला, निकालने के बाद x एंड y का वैल्यू लिखा, फिर उसको इंटरप्रेट कर दिया. हो गया समझ में? देखो अच्छे से देखो कितना इजी है, देखो है कि नहीं? पूरा सिंपल इजी है, दोनों मेथड वेरी इजी है. बस वो जो मैट्रिक्स मेथड है ना, वो थोड़ा मतलब थोड़ा लेंदी है, बिकॉज हमें ए इनवर्स निकालना है. ए इनवर्स मतलब पूरा इनवर्स को मेथड फॉलो करो. पहले डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, फिर को फैक्टर्स निकालो, को फैक्टर्स को डेवलप करके एडजॉइंट निकालो. ठीक है, एडजॉइंट आने के बाद एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए करने से वो आएगा इनवर्स. वो आने के बाद फिर उसको बी के साथ मल्टीपल करो, करने से आएगा एक्स एंड वाई एंड जेड का वैल्यू, जैसे हमने किया था. वो थोड़ा लेंदी था प्रोसेस. ठीक है, बाकी ये प्रोसेस पूरा सिंपल है कि नहीं? पहले तो सिंपल ये जो डेवलप कर लो अपना एक मैट्रिक्स, जिसके हिसाब से अगर 2 अननोन वेरिएबल हैं तो 3 मैट्रिक्स, अगर 3 अननोन वेरिएबल तो 4 मैट्रिक्स. ठीक है, ये दो ही आपको दिया जाएगा, 2 into 2 और 3 into 3. ये दोनों ही टाइप के, ये एक टाइप का है और दूसरा टाइप करेंगे अभी. बस इतना हो गया. फिर होने के बाद डिटरमिनेंट निकालो, सिंपल डिवाइड कर दो, सिंपल अलजेब्रा हो गया, वैल्यू मिल गया अपने को. ओके, क्लियर? आई होप यू ऑल मस्ट बी क्लियर अबाउट क्रैमर्स रूल. सो तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर में ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट इनवर्स इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखो, प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ो. ठीक है, और ये आ गया क्रैमर्स रूल, सारोस डायग्राम. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है. क्लियर हो गया समझ में? चलो अभी लेते हैं एक, ये हो गया 2 का क्वेश्चन. एक अभी लास्ट में हम एक लेंगे 3 का क्वेश्चन. ओके, 3 का क्वेश्चन लेंगे, उसको करेंगे प्रैक्टिस. होने के बाद आप सब हो गए पूरा, आप आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सब भी अभी मास्टर हो गए ये जो मैट्रिक्स चैप्टर में, क्योंकि इतने में अपना मैट्रिक्स चैप्टर खत्म होता है कि नहीं? बाकी फिर और एक दो क्लास हम करेंगे जो कि डिफरेंट वेराइटीज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें. ठीक है, वो एक्स्ट्रा है. को आई होप कि वो तक मुझे ना जाने की जरूरत हो, आप पूरा मास्टर हो जाए, सब अपने आप ही कर लो. ठीक है, कर पाओ, बुक से क्वेश्चन डेवलप करो, अपने आप उसको सॉल्व करो एक पे एक. ठीक है, चलो अभी लेते हैं एक 3 का इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, चलो 3 का इक्वेशन, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन दिया है, ओके चलो सोचो कि देखो ये दिया है क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3. सी स्टूडेंट्स, और क्या रहता है क्वेश्चन में, ये जो है ना x y z, इसको और कोई नाम में भी नेम दे सकता है वो. जैसे कि x को सोचो कि दे दिया x1, y के बदले में दे दिया x2, z के बदले में दे दिया है x3. कोई बात नहीं, x y z जो था वही आ गया x1 x2 x3. ठीक है, अगर ये भी दे सकता है. ठीक है, और क्या दे सकता है? और में भी दे सकता है इसको अननोन वेरिएबल को वो क्या दे सकता है, मैं बोल रहा हूं कि x y z को वो x1 x2 x3 दे सकता है, और नहीं तो a1 a2 a3 भी दे सकता है. ठीक है कि नहीं? तो कुछ भी दे सकता है, ये दो बेसिकली देता है, x y z और x1 x2 x3 और a1 a2 a3. ठीक है, कोई भी दियो. ठीक है, कोई भी दे, आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, सब में प्रोसेस एक ही है. इधर अगर निकालना है तो एक्स वाई जेड निकालना है, वही प्रोसेस में अगर निकालना है x1 x2 x3 निकालना है, और वैसे ही a1 a2 a3, बस नाम ही अलग है. ठीक है, नाम ही अलग है, बाकी वही एक ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है,
जो जो हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बोलो कि सर एक्स वाई जेड आप बोले थे, इधर क्या नया आ गया, x1 x2 x3 क्या होगा, ये तो नहीं बोले थे आप, ठीक है। तो चलो लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x plus 3y plus 4z is equals to 2 3 4z equals to 9, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। देन है अपना x plus 2y minus 4z is equals to -1, okay, is equals to -1, that is थर्ड इक्वेशन। हो गया, तो ये हो गया अपना कितना 3 into 3, 1 2 3 3 कॉलम, 1 2 3 3 रो, ठीक है, 3 into 3 डेफिनेटली आ गया। तो इधर देखो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि x आर इन कॉलम 1, y इन कॉलम 2 एंड z इन कॉलम 3, सब वेल सेट है। बस सिंपल हमें अभी मैट्रिक्स डेवलप करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो पहले हम सॉल्व निकालते हैं, क्या d, पहले निकालते हैं d। क्या हो गया d, देखो पहले फर्स्ट रो के जाओ, ये हो गया x के आगे कुछ नहीं मतलब 1, y के आगे कुछ नहीं है, z के आगे कुछ नहीं मतलब 1 1 1, सो 1 1 1, ठीक है। अभी चलो सेकेंड इक्वेशन, बस सेकेंड रो, ये x के आगे क्या है 2, तो 2, y के आगे है 3, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 3, द कोएफिशिएंट ऑफ z इज 4, क्लियर। नाउ थर्ड रो को चलो, the coefficient of x is 1, the coefficient of y is 2, the coefficient of z is -4, हो गया, ये आ गया अपना d, ओके क्लियर। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है हमको, इमीडिएटली ये d को हमने डेवलप किया, मैंने आपको पहले बताया कि d dx dy dz पहले मैट्रिक्स डेवलप करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, बट हम उसी टाइम पे उसका, जैसे कि मैट्रिक्स डेवलप हो गया, आप इमीडिएटली उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, इजी रहेगा, है कि नहीं। तो वो हम कर सकते हैं वैसा। तो ये हो गया ना अपना मैट्रिक्स हो गया। तो चलो अभी हम इमीडिएटली इसका डिटरमिनेंट भी निकाल देते हैं। सो डिटरमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होगा, चलो हम लेते हैं पहले रो 1 को, एक्सपांडिंग रूल ही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि एक्सपांडिंग रूल ही सिंपल है, इजी है, सारा डायग्राम भी इजी है, बट उसको क्या डेवलप डायग्राम करके करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सिंपल है, इजी है। तो चलो 1 लेते हैं, 1 अगर आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया 3 4 3 4 2 -4, क्लियर, यू आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट। फिर प्लस -1 इनटू ये हो गया, तो 2 4 1 -4 2 4 1 -4, ठीक है, एंड +1 प्लस माइनस प्लस +1 इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 2 3 1 2, ओके 3 4 2 -4 2 4 1 -4 2 3 1 2, बस हो गया। अभी 1 इंटू ये हो गया, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं समझ में क्लियरली, ठीक है। सो हो गया 3 इंटू -4 -2 इंटू 4, ठीक है, देन -1 इंटू ये हो गया 2 इंटू -4 -1 इंटू 4, फिर +1 इंटू 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, अभी 1 है, ये हो गया 3 4 जा -12, ये हो गया -4 2 जा 8, -1 इंटू 4 2 जा -8 -4 इंटू 2, क्लियर, 4 2 जा 8 -8 -4 1 जा 4 +1 इंटू 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, ओके। सो ये क्या हो गया 1 इंटू -12 -8, ये हो गया माइनस, है कि नहीं, -12 के साथ -8 मिल गया तो हो गया -20, क्लियर, माइनस ये हो गया -8 -4, तो 8 4 12, सो -1 इंटू -12 इज इक्वल्स टू +12, ये हो गया -1 है, इधर क्या हो गया -8 -4, कितना हो गया -8 -4 -12 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू -+ 12 प्लस
4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया 21 जा 20 माइनस 20 प्लस 12 प्लस 1, सो माइनस 20 और प्लस 12 प्लस 1 13, प्लस में 13 माइनस में है 20, तो आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया अपना -7। क्लियर, आंसर क्या हो गया -7। ओके क्लियर, तो वी हैव d equals to -7। क्लियर, डिटर्मिनेंट of the master matrix is -7। clear, now हो गया समझ में। जिधर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उधर ही वीडियो पॉज कीजिए और वो जो थिंग को अच्छे से और एक बार देखिए, हो गया फिर आगे चलिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हो, कोई वैल्यू नहीं, कुछ फायदा नहीं। आपको एक तो फ्रस्ट्रेशन आएगा कि चलो मैं देख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप वो देखने के बाद फिर से आप अगर करने के लिए जाओगे अपने आप तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जिधर भी समझ में नहीं आ रहा है उधर ही पॉज कीजिए। ठीक है, पॉज करने के बाद जाके देखिए फिर से वो, फिर आप प्ले करिए। ठीक है, चलो ये हो गया, डी हो गया। अभी निकालना क्या है, बिकॉज एज वी नो वी हैव 3 अननोन वेरिएबल x y z, तो dx dy dz निकालना है। अभी निकालते हैं dx। तो सिंपल स्टूडेंट, dx में क्या करना है, x का वैल्यू को रिप्लेस कर दो, x है ना, बस उसको रिप्लेस कर दिया। उसके जगह पे क्या लिखेंगे, जो राइट साइड में जो है 3 इन रो 1, 9 इन रो 2 एंड -1 इन रो 3। ठीक है, आए समझ में, क्या किया हमने, समझ में आया कि नहीं। dx निकालना है, dx मतलब x को रिप्लेस कर दो, x में जो था उसको निकाल दो, नया वैल्यू के ये 3 9 -1 आ गया नया वैल्यू, बाकी y z एज यूजुअल रहेगा। ठीक है, ये हो गया dx। अभी हमें निकालना है द डिटरमिनेंट dx। क्या हो गया, 3 इंटू 3 4 2 -4 है ना, प्लस माइनस -1 इंटू 9 4 -1 -4 ओके, बाकी +1 इंटू 9 3 -1 एंड 2। ओके क्लियर, अभी निकालो 3 इंटू, ये हो गया क्या, 3 इंटू -4 -2 इंटू 4 -1 इंटू 9 इंटू -4 -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 9 इंटू 2 -1 इंटू 3। ओके, देन 3 इंटू 3 4 जा 12, we have minus, तो -12। clear, 3 4 जा 12 -12 because we have means 3 into -4 equal to -12 minus, ये हो गया 2 4 जा 8 -8। okay, then -1 into 9 into -4 -36। okay, 9 4 जा 36 माइनस 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये देखो, ये -4, ये है माइनस, तो ये +4 हो गया ना, ये था माइनस मैंने डाला था, ये हो गया -4, तो -4 इंटू -4 एंड ये इधर है माइनस, तो -4 माइनस +4 हो गया। ठीक है, अभी +1 इंटू 9 2 जा 18 माइनस 3 1 जा 3, तो बिकॉज वी हैव -1 इंटू 3 इक्वल टू -3 -3, ये हो गया माइनस है, तो ये हो गया +3। ओके, चलो अभी करो, -12 -8 -12 प्लस -8 इक्वल टू -20 -20 इंटू 3 इक्वल टू -60। ठीक है, माइनस ये हो गया -36 +4, नेगेटिव में -36 है, -36 +4, तो क्या हो गया, 36 में -36 में 4 ऐड कर दो, तो हो गया 4 कट गया, अभी बचा -32 -32, ये -1 माइनस +32। ओके,
माइनस 60 प्लस 32, ये हो गया प्लस 18 प्लस 3 21, 21 जा 21 इंटू 1 इक्वल टू 21. सो क्या हो गया अपना माइनस 60 प्लस ये हो गया 32, ये 21, कितना हो गया 30 20 53 है कि नहीं. माइनस 60 प्लस 53 इज इक्वल्स टू -7. ओके, अपना d कितना आया था याद रखो अच्छे से, d आया था -7, dx भी आ गया -7. ठीक है, क्लियर. देखो अच्छे से हो गया, d आया था -7, dx आ गया -7. ओके, अभी क्या निकालना है, अभी निकालना है हमें dy निकालना है. हो गया इतना, आ रहा है समझ में. चलो अभी हमें करना है नेक्स्ट dy. ओके, चलो dy निकालते हैं. तो dy करेंगे तो क्या करेंगे, पहले वो जो जैसे था एज यूजुअल लिख देते हैं, वो था 1 2 1, ये था एज यूजुअल. अभी हमको क्या करना है, dy निकालना है. तो dy निकालना है मतलब जो कि मास्टर है, मास्टर मैट्रिक्स, उसमें क्या है कि y को रिप्लेस कर दो विद द न्यू वैल्यूज. बिकॉज y कौन सा है, कॉलम 1 कॉलम 2 में है, तो कॉलम 2 को निकाल दो, हटा दो, क्योंकि y था कॉलम 2, कॉलम 2 को हटा दो, उसके जगह पे क्या लिख दो, नया वैल्यू 3 9, ये -1. हो गया सिंपल. देन अभी निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ y. तो क्या हो गया 1 इंटू ये हो गया 9 4 -1 -4. क्लियर. नेक्स्ट प्लस -3, ठीक है, रूल है प्लस प्लस -3 इंटू 2 4 1 -4. ओके, देन प्लस 1 इंटू 2 9 1 -1 2 9 1 -1. बस अब इसको सॉल्व करो. 1 इंटू ये हो गया 9 इंटू -4, 9 इंटू -4 माइनस -1 इंटू 4. ठीक है, बाकी देन -3 इंटू ये हो गया 2 इंटू -4. ठीक है ना, -4 था, 2 इंटू -4 2 इंटू -4 माइनस 1 इंटू 4. ओके, प्लस 1 इंटू 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 9. ओके, बाकी 1, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को. अभी चलो आ गया 9 4 जा 36 -36, बिकॉज वो -4. 9 इंटू -4 इक्वल टू -36. ये हो गया 4 इंटू -1 इक्वल टू -4. ठीक है ना, -4 इधर है, माइनस 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 प्लस, ये हो गया +4. क्लियर. देन -3 इंटू ये कितना आ गया देखो, -4 इंटू 2 इक्वल टू -8. ठीक है, -4 2 जा 8 -4 1 जा 4 -4. ओके, प्लस 1 इंटू ये हो गया 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, ये हो गया -9 1 जा 9. क्लियर. देन अभी ये है 1, तो 1 इंटू -36. ठीक है, -36 प्लस 4 इक्वल टू -32, ये हो गया -32. ठीक है, सो -32 इंटू 1 इज इक्वल टू -32. देन ये हो गया -3, ये हो गया -8, ये -4. चलो एक स्टेप को क्यों ये करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए. ये हो गया -32, फिर -3 इंटू, क्लियर, -3 इंटू -8 -4 इक्वल टू -12. हो गया कि नहीं, -12, 8 and 4. देन प्लस 1 इंटू -2 -9 इक्वल्स टू -11. तो अभी क्या हो गया, ये हो गया -32 इंटू 1 इज इक्वल टू -32, -3 -12, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 12 3 जा. ओके, कितना 36.
36 ये हो गया, प्लस ये -11 इंटू 1 इक्वल टू -11, माइनस प्लस माइनस ये हो गया -11। तो अभी बचा क्या कि देखो क्या हो गया कि माइनस में हो गया ये 32 और -11, ठीक है, कितना हो गया 43, -43 प्लस 36 है कि नहीं, तो कितना बच गया -43 प्लस 36, मतलब वी हैव -7। सो dy इज इक्वल टू -7, db -7, dx भी -7, dy भी -7 आ गया, ठीक है। अभी फाइनल वैल्यू निकालना है dz। क्लियर, आ रहा है समझ में? देखो हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, एक बाय एक, सिंपली, ठीक है, घाई नहीं करना है, हरी नहीं है, ठीक है, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से करो। क्लियर, 2 मिनट के जगह पे 3 मिनट लग जाए, 3 मिनट के जगह पे 5 मिनट लग जाए, बट अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं जैसे मैंने बोला था गलती होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज अलजेब्रा एक ऐसा चीज है ना, जैसे कि मैंने देखा इधर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में आपको गलत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, आपको अच्छे से याद रखना है, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, बाकी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइंस आएंगे, बस ये ही है मेन, इधर ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर इसमें गलती कर दिया तो ये जो है ना -7 अगर +7 आ गया तो आपका वैल्यू गया, ठीक है, -7 आ रहा है, सोचो कि आप प्लस माइनस गलत कर दिए और आपका वैल्यू आ गया +7, तो वो जो पूरा का पूरा ये जो स्टेप है पूरा गया, एक सिंपल साइन के लिए आपका पूरा जो है मेथड वो गया पूरा। सो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अच्छे से आराम से एक एक कीजिए स्टेप्स, ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो हो गया y, अभी निकालना है dz, ठीक है। तो z मतलब कैसे करना है, जैसे हमने बोला था कि z मतलब जो वैल्यू है, यह मास्टर मैट्रिक्स था, इसमें क्या करना है हमें, बस dz, z मतलब थर्ड कॉलम को हटा दो, वो जगह पे नया वैल्यू डाल दो, 3, 9 और -1, बस हो गया। अभी dz निकाल दो, 1 इंटू ये हो गया 3, 9, 2 -1, ओके, -1 इंटू 2, 9, 1 -1 प्लस 3 इंटू 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, ओके। चलो 1 इंटू 3 इंटू -1 -2 इंटू 9 -1 इंटू 2 इंटू -1 -1 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 -1 इंटू 3, ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप, ये क्या हो गया, 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, है कि नहीं, -3 माइनस 9 2 जा 18, -3 -18, देन -1 इंटू 2 1 जा 2, ये है -1, सो 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, माइनस 9 1 जा 9 प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ओके, क्लियर। अभी क्या हो गया, 1 इंटू देखो ये -3, ये है -18, -3 -18 कितना हो गया -21, ये हो गया -1 इंटू ये है -2 -9 इक्वल्स टू -11, ये हो गया +3 इंटू 4 -3 इक्वल्स टू 1, क्लियर। अभी क्या बचा देखो, -21 इक्वल टू 1 इक्वल टू -21, ये है -11 इंटू -1 इज इक्वल टू +11 प्लस 3 1 जा 3, तो क्या हो गया अपना कि -21 प्लस 14,
क्लियर? तो -21 प्लस 14 इक्वल्स टू -7, तो dz भी आ गया -7, क्लियर? कंप्लीट। तो वी हैव d dx dy dz, सब आपने को अभी मिल गया। अभी सिंपल क्या करना है, x y z का वैल्यू निकालो, ठीक है? क्लियर हो गया? d dz आ गया समझ में, तीनों चारों का वैल्यू आ गया -7। अभी सिंपल हमें क्या करना है, x y z का वैल्यू निकालना है, जिधर x इक्वल्स टू dx बाई d, y इक्वल्स टू dy बाई d, z इक्वल्स टू dz बाई d। ओके, चलो नाउ x निकालना है ना, तो x इक्वल्स टू dx बाई d, y इक्वल्स टू dy बाई d। आपको नीचे नीचे कॉलम नीचे नीचे ही करना है, ठीक है? आपको ऐसे रो वाइज सॉल्व नहीं करना है, आपके आंसर शीट में कॉलम वाइज नीचे 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 जाओ। मैं इधर कर रहा हूं dx dy बिकॉज आई हैव लैंडस्केप फॉर्मेट, आपको ऐसे नहीं, dx फिर उसके नीचे dy फिर उसके नीचे dz, ठीक है? एंड z इक्वल्स टू dz बाई d, क्लियर? सो dx -7 by -7, because we have dx equal to -7, d equal to -7, that is equals to 1. We say y -7 by -7 is equals to 1, z -7 by -7, because हमारे चारों के वैल्यू आ गए -7, d -7, dx -7, dy -7, dz -7, dx dy d7 -7 and divided by d, that is -7. so क्या हो गया वैल्यू 1 1 1। so इधर लिख रहे हैं x equals to 1, y equals to 1, z equals to 1। बस हो गया सॉल्व, सॉल्यूशन ओवर। बस सिंपल स्टूडेंट्स, यही टाइप के आपको प्रॉब्लम आएंगे। और जैसे कि मैंने बोला था, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन इसमें थोड़ा क्या करेगा कि प्लेसेस को इधर उधर कर देगा, जिसको आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने वो बता दिया है कि नहीं? क्योंकि देखो x को मैं भी इधर ला सकता है, y को इधर ला सकता है, ठीक है? बस आपको यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो इक्वेशन को पहले तो एक सिंपल ऑर्डर में अच्छे से लिखना है, मास्टर मैट्रिक्स एक बार डेवलप होने के बाद फिर पूरा इजी है, ठीक है? तो वो चीज पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये जो इक्वेशन को आप कैसे अच्छे से लिखोगे, ठीक है? एक्स वाई जेड की जगह पे, ठीक है? मतलब कॉलम वाइज कैसे सेट हो एक्स वाई जेड, ठीक है? और एक्स वाई, देन वो जो डिटरमिनेंट है समथिंग बिफोर कुछ नहीं मतलब 1 है, वो ही बिल्कुल नहीं। सोचो कि x इधर बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब 1 नहीं है, ये x बिल्कुल भी नहीं है, x है मतलब कुछ नहीं है, मतलब उसका नथिंग मींस 1। मेरे पास कुछ नहीं मतलब मैं ही हूं, मेरे साथ और एक है, ठीक है? तो दैट मींस मेरा हो गया क्या, 2 हो गया, मैं और मेरे साथ एक 2 हो गया, मैं ही हूं, x ही है मतलब 1 ही है, तो मतलब नहीं है, मैं नहीं हूं मतलब 0, ठीक है? बस प्लस माइनस को फिर कंसीडर करना है। जैसे कि अंदर देखा हमने -4 है मतलब इसका कोफिशिएंट 4 नहीं है, -4 है, ठीक है? बस इतना अच्छे से याद रखो, फिर मैट्रिक्स डेवलप कर लो, फिर सिंपल है dx dy dz, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, विद दिस क्लास we have completed the Cramer's rule, that is most important chapter, clear? most important concept वो हो गया आपका क्लियर। अभी हमें क्या करना है, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है? अगर कोई भी किधर भी डाउट आ रहा है, आई होप डाउट इसमें नहीं आएगा, अगर भी आ रहा है तो उधर पॉज करो, फिर थोड़ा बैक जाओ, फिर से वो वीडियो देखो, 2-3 बार देखो, फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिए, ठीक है? वो डाउट को आई विल डेफिनेटली क्लियर द डाउट, क्लियर? एंड विद दिस 95% जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का है चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। अभी क्या है 95, बिकॉज वो जो है एक्स्ट्रा 5, वो जो कुछ वेराइटीज प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो वो होने के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, बस एक कॉन्सेप्ट वाइज वेरियस थिंग्स को वर्कआउट करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है? और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो वो आपको पूछना है, ठीक है? क्लियर? सो आई होप I was able to clear all your conceptual difficulties about matrix and determinant, clear? So in the next class we'll go for the other things, ठीक है?
So with this, we end up the class over here. Best of luck. Thank you.